It's a joy to be here, dear friend, and wonderful experience to prepare ourselves for the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. During these days, we are continuing our Bible study, and as I have already said, that up to 19th of this month we'll have the Bible study, and then we'll have a pause, and we'll restart it from January 15th next year. Thus far, we have studied from the book of Genesis about the God's messages and the covenant that He established with Abraham. And in that, we have the blessed message of the coming of Messiah. The Messiah is the one who came into this world, and because of His coming, human being can have access to God, and the name of Jesus Christ was also Emmanuel. That means God is with us. प्रिय मित्रों, हम लोग प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए और उसके वचन की शिक्षा के लिए, जहाँ पर हम अपने आप को उसके वचन के संदर्भ में पाते हैं। और मेरी आशा है कि इन दिनों में जो अध्ययन हमने करी है, इससे प्रभु ने हमसे बातचीत करी और आज शाम भी प्रभु हमसे बातचीत करेगा। इन दिनों में एक और समस्या हमारे बीच में जो चल रही है, वो है कोरोना वायरस की समस्या, कोविड-19 या पैंडेमिक। लेकिन इन सब निराशाओं के बावजूद हमारा प्रभु हमें आशा प्रदान करता है और हम लोग उसकी आशा में आनंदित हैं। हमारे जीवन में वो आनंद पाया जाता है जो सांसारिक बातों में नहीं पाई जाती। प्रभु की बातें हमेशा के लिए हैं। द थिंग्स ऑफ गॉड of the Bible is permanent because He is the author of everything and author of our faith. And this evening, as we study this word, let us concentrate to hear His voice, listen to His voice, and be attentive to fulfill His command in our lives. आज शाम के समय, अब जबकि हम वचन का अध्ययन कर रहे हैं, हम उसे प्रार्थना करें कि प्रभु का आत्मा हमसे बातचीत करे कि हम उसके वचन के अनुसार चलने वाले बन सके। Before we start this Bible study, let us have a time of prayer. आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु का आत्मा हम सब से बातचीत कर सके। We thank you, Lord, for this precious time that you have given to us. As we come to you, Lord, in silence, in preparation of our heart to listen to your word, we pray that speak to us. स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं जबकि हम शांतचित होकर आपके सामने मौजूद हैं, आज शाम के समय आप हमसे बातचीत करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friend, as I've said that these Bible studies are connected with the Advent season and the promises of God that He has made in the scripture for all of us. Today we'll study a little bit from the book of Romans chapter 4, 1 to 16. आज हम रोमियो की पत्री के चौथे अध्याय के 1 से 16 पद पर कुछ बातों को देखेंगे, जिससे या जिनके साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन का वचन जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर 2-3 मुख्य बातें हम देखेंगे। हालांकि ऐसे तो हम कई बातों को देखेंगे, लेकिन 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं जिसका संबंध हमारे बाइबल और हमारे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से है, जहाँ वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। ये क्या है और ये किन के लिए है, आज उस पर हम ध्यान देंगे। पहली बात जो हम देखना चाहते हैं वो पाया जाता है चौथा अध्याय उसके पहले पद में और दूसरे पद में लिखा है, इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता इब्राहिम या अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? कि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। Now in English we read here from chapter 4 of Romans verse 1 onwards. What then shall we say was gained by Abraham, our forefather, according to the flesh? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about,
but not before God. For what does the scripture says? Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. Now, the word of God says, the Bible says very clearly that Abraham believed in God. When you study his life and some of the things that we have already done it last week, which talks about how God met him in Haran when he was with his father Terah and with his three brothers, two brothers rather, because including him there are three brothers. We read about them in Genesis chapter 11. But in 12th chapter there is a revelation which we read about Abraham. God revealed himself to him. मित्रों, हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक के 12 अध्याय में अब्राहम के बुलाहट का वर्णन पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उससे बातचीत करी. गॉड स्पोक टू हिम, और उसने उसको वो कमांड दिया जिसके कारण उसको उस देश को छोड़ करके कनान में जाने की आवश्यकता थी, जो परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे को और तेरे वंशज को दूंगा. ये तेरे लिए होगा, तुम्हारे लिए होगा अब्राहम, जब तुम मेरी आज्ञा मानोगे. और वह लिखा है कि उसने ईश्वर की आज्ञा मानी. और वहां पर एक और बात लिखी है 12 अध्याय के 3 और 4 पद में. वहां लिखा है कि अब्राहम जब चला अपने भतीजे लूत को लेकर के, तो अब्राहम खुद 75 साल का था. और जब अब्राहम की मृत्यु हुई तो उसकी उम्र थी 175. मतलब क्या है कि 100 साल तक अब्राहम विश्वास से चलता रहा. For 100 years Abraham walked by faith, and that was for him was counted as righteousness by God. परमेश्वर ने उन तमाम सालों के उसके उन विश्वास के कामों को उसके लिए धार्मिकता गिना. और इसलिए अब्राहम आगे चल कर के कभी भी उसने गर्व नहीं करा, कभी उसने घमंड नहीं करा कि मैं योग्य हूं. एक और खास बात जो हमने देखी कि जब वो 100 साल का हो गया और उसकी पत्नी सारा 90 साल की हो गई, तो परमेश्वर ने उनको उस बच्चे की आशीष से परिपूर्ण करा जिसका नाम रखा गया इसहाक. और उसके कारण जो प्रतिज्ञा किया हुआ बेटा था, परमेश्वर ने पूरे संसार को आशीषित करा. तो यहाँ पर अब्राहम के लिए, चाहे हम शारीरिक बात करें, शारीरिक कुवत की बात करें, शारीरिक सामर्थ्य की बात करें, उसकी बात करें, उसके पत्नी की बात करें, वो किसी प्रकार से भी इस योग्य नहीं थे कि उनके बच्चे उत्पन्न हो. वो दोनों बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, परमेश्वर ने पूरा करा. और उस प्रतिज्ञा पर अब्राहम ने विश्वास किया, उसको परमेश्वर ने उसके लेखे में धार्मिकता गिना. और यहाँ पर इसी बात को प्रभु का दास संत पौलुस लिख रहे हैं. क्या लिखते हैं? इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं. और इसीलिए हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि तुम्हारे सारे धर्म के कार्य ईश्वर के सामने मैले चित्रों के समान. ऑल आर गुड वर्क्स आर लाइक फिल्थी रैग्स बिफोर गॉड. हम उन पर घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उसको सामने रखकर तो उससे बदबू आएगी, वो फटे पुराने होंगे और उसको फेंकने की आवश्यकता. और इसलिए परमेश्वर हमें अपने विश्वास को अपने सामने रखने की बात करता है, जो कि पुराना नहीं होता. That's why God is intending that we keep our faith before Him, which will never become old, or it will remain as fresh as it is now and after 100 years also. By faith we walk with Him, and by faith Abraham pleased God, and that was counted on his favor for his account as righteousness. परमेश्वर यहाँ पर इस बात को हमारे सामने आज प्रकट करता है. यहाँ पौलुस कहते हैं दूसरे पद में 4 अध्याय के रोमियो के, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे धर्म घमंड करने की कोई जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं. और ये होता मित्रों, अगर अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाहट दी 75 साल का, और अगर एक ही साल के अंदर उसका कोई इश्यू हो जाता, प्रतिज्ञा का बेटा हो जाता, तो अब्राहम कह सकता देखो मैं तो इसके योग्य हूं. उसकी पत्नी 65 साल की थी,
वो भी कहते कि ये तो हमारे द्वारा हुआ, लेकिन परमेश्वर उनको 25 साल और वेट कराता। जब अब्राहम 90 साल का 99 ईयर्स का हुआ और सारे 89 ईयर्स की हुई, तो परमेश्वर ने उसे कहा कि अब तेरे को बेटा मैं दूंगा और ये तेरे लिए आशीष का कारण होगा, उससे तेरा वंश चलेगा। लेकिन अगर आप अब्राहम को देखें तो अब्राहम ने दो बातें कही। उसने क्या कहा कि मेरा जो दास है एलियाजर जो दमिश्की है, परमेश्वर उससे मेरा वंश चला दे। फिर आगे कहते हैं परमेश्वर मेरा जो बेटा इस्माइल है उससे तो मेरा वंश चला दे। परमेश्वर का नहीं, मैं तेरे वंश को तेरे ही पुत्र के द्वारा चलाऊंगा जो प्रतिज्ञा के द्वारा तुझे दिया जा रहा, और मैं ऐसा होने दूंगा। और परमेश्वर ने होने दिया। इसलिए वहां पर जब दोनों 100 ईयर्स का था, अब्राहम 100 साल का हुआ और सारा 90 साल की हुई, तब उनके परिवार में इसहाक का आगमन हुआ। जब दोनों अक्षम थे शारीरिक रूप से, सांसारिक रूप से, कोई मेडिकल साइंस भी इस बात को आज प्रूव नहीं कर सकती है कि 100 साल और 90 साल के दंपति के बच्चा हो या उनके घर में कोई पुत्र या पुत्री हो। जब असंभव हो गया, परमेश्वर ने कहा अब मेरा समय हुआ है। और इसलिए अब्राहम ने परमेश्वर के उस बात पर विश्वास करा और परमेश्वर ने उसका उस विश्वास को परमेश्वर ने अपने लेखे में धार्मिकता गिना। अब यहां लिखा पवित्र शास्त्र क्या कहता है, यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वालों को मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता, ये दूसरी बात है। ये दूसरी बात है क्या है कि काम करने वाले को मजदूरी देना दान नहीं पर उसका हक समझा जाता, परंतु जो काम नहीं करता परंतु भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब हमने देखा 15 अध्याय जो उत्पत्ति की किताब की है कि परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम तू बाहर निकल, और उसी के आगे हम देखते हैं कि जब शाम होने लगी, इसका मतलब दिन के समय परमेश्वर अब्राहम को बाहर ले जा रहा, दोपहर के समय या 3-4 बजे। और हम कहेंगे कि 3-4 बजे तो सूरज ही दिखता है, तारे कहाँ दिखते हैं? जी हाँ, यही परमेश्वर का काम है। और परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा कि तारों को गिन ले। भाई तारे दिख नहीं रहे तो गिने कहाँ वो हो नहीं सकता। और दिख भी जाए तो रात को तो गिन नहीं सकता। जो असंभव है मनुष्य की दृष्टि से, परमेश्वर उसको संभव करना मांग रहा था। उसने कहा कि अब्राहम तू अभी तक बालक तेरे नहीं जन्मा है, तेरा उत्पन्न नहीं हुआ तेरी पत्नी सारा से, लेकिन मैं वो काम करने वाला हूं जिसको तू देख नहीं सकता, जो तेरे सामने उजल है। इसलिए हम पढ़ते हैं बाइबल में लिखा है कि जो बातें दिखती हैं वो क्षणिक है, टेम्परल है, लेकिन जो बातें अनदेखी है वो अनंतकालीन है। और परमेश्वर यही चाहता था कि अब्राहम परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर विश्वास करे, उसके वायदों पर विश्वास करे कि परमेश्वर आपने जो कहा है, आपने सत्य कहा परमेश्वर, और आपके वचन पर मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। लॉर्ड, वॉट एवर यू हैव सेड राइटली and I believe in your word. I have no doubt, even in iota I don't have any doubt. परमेश्वर, मैं आपके प्रतिज्ञाओं पर एक बिंदु भी शक नहीं करता हूं। और इसीलिए अब्राहम के उस विश्वास को परमेश्वर ने उसके लेखे में धार्मिक गिना। मित्रों, जो बड़ा दिन का जो संदेश हमारे लिए है, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, और हम आजकल एडवेंट सीजन में हैं, मित्रों यही तो ईश्वर चाहता है। आज पिछले 9-9.5 महीनों से हम एक ऐसे पीरियड से निकल रहे हैं जिसको पेंडेमिक कहा गया, जिसको कोविड-19 एज कहा गया, जिसको कोरोना वायरस का एज कहा गया। हर तरह से, हर प्रकार से निराशा है। और अगर हम देखें इस समय भी कलीसिया के अंदर बिल्कुल सब कुछ एक प्रकार से शांत है, कोई एक्टिविटीज नहीं है। ना हम यहाँ पर आके गीत गा रहे हैं, ना कुछ डेकोरेशन कर रहे हैं, ना केक बना रहे हैं, ना तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से हम कहेंगे कि भाई इस बार क्रिसमस तो हो ही नहीं रहा। क्या ये परिस्थिति बदल सकती है? क्या ये परिस्थिति बदल सकती है? परमेश्वर इस स्थिति को बदल सकता, हमारे मनों बदल सकता। हम लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, लेकिन कोई तैयारी नहीं दुनियावी एतबार से।
ना कोई बड़ी शॉपिंग हो रही है, ना कुछ हम तैयारी कर रहे हैं, ना हम मित्रों को बुला रहे हैं कि भाई इस दिन आप हमारे घर में आना है या हम उनके घर में जाने की तैयारी कर, कुछ भी तो नहीं हो रहा। सांसारिक दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि जैसे साधारण दिन है उससे भी ज़्यादा साधारण हो गया इस साल हमारा बड़ा दिन का मनाना। लेकिन याद रखिएगा, अब्राहम के सामने कुछ भी नहीं था, तब भी ईश्वर ने कहा तू विश्वास करता है? उसने कहा मैं करता हूँ। हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। परमेश्वर जब कुछ भी नहीं दिख रहा है, चारों तरफ निराशा है, क्या आप हमारे साथ हैं? वो कहता है मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूँ। ही सेइंग डोंट लुक हियर एंड देयर in spite of all this situation, which is next to impossible. It's impossible. This situation is so frightened. Many people are panicked today. Many people have got the fear in their hearts. They are not able to come out of their house where they are confined for last 9 or 10 months. But God is saying that in this situation, I am there in your midst. मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने अब्राहम से कहा, वो हमसे कहता, और यही सुसमाचार है इस साल के लिए बड़े दिन का। वो कहता है कि हमें विश्वास करने की आवश्यकता कि परमेश्वर है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ चारों तरफ निराशा है, चारों तरफ हताशा है, नौकरियों में प्रॉब्लम हो रही है, बहुतों की नौकरियां खत्म हो गई, बहुतों को आधी सैलरी मिल रही है, कुछ लोगों को 1/3 मिल रही है, कुछ के घर में बहुत कम रह गया, बच गया कि वो क्या करे नहीं करे, उनको समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर कहता है कि वो है। इब्रानियों उसके 11 अध्याय के 6 पद में लिखा है कि हमें इस बात पर विश्वास करना कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मैं सोचता हूँ मित्रों, यही इस साल के लिए बड़े दिन का संदेश मेरा और आपके लिए, जो परमेश्वर के दास अब्राहम के लिए था आज से लगभग 4000 साल पहले, वो हमारे लिए भी आ जाए कि इस निराशा के बावजूद हमारा विश्वास परमेश्वर में बना रहे और हम उसमें बढ़ते चले जाएं। तीसरी बात यहाँ लिखा है जिसको हम पढ़ते हैं यहाँ पर 6वें, 7वें और 8वें पद में, जिससे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता। धन्य है जिसका अपराध क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। अब यहाँ पर आप इस बात को ध्यान से देखें, पुराने नियम में परमेश्वर ने इस साल जाति को लेकर दिन ठहरा जिसको कहा गया महाप्रायश्चित का दिन, द डे ऑफ ग्रेट एटोनमेंट। अब उस दिन के लिए 2 जानवर रखे जाते थे महायाजक के द्वारा, ताकि उन दोनों जानवरों के एक बाद उनको ला करके वेदी के सामने रखे। जो पहला जानवर लाया गया उसका नाम था अजाजेल का बकरा, और उसके सर पर इस्राएलियों के महायाजक ने हाथ रखा और पुरनियों ने हाथ रखा, और उन्होंने अपने पापों का, अपने परिवार के पापों का और अपने संपूर्ण जाति के पापों का प्रायश्चित करा परमेश्वर की वेदी के सामने। और ये विधि थी कि वो जानवर जंगल में छोड़ दिया जाए। क्या मतलब है कि परमेश्वर ने उनके पाप को उनसे दूर कर दिया। जैसे पूर्व से पश्चिम दूर है, वो हमारे पापों को हमसे दूर करता है। इसलिए यहाँ पर दाऊद कहता है धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा हुए, जिनके अधर्म क्षमा हुए। फिर दूसरा जानवर लाया जाता था जो होम बलि का होता था। उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर, इसके पहले कि वो उसको बलि किया जाता, उस वेदी पर महायाजक और पुरनिय और याजक अपना हाथ रखते थे और अपने पापों को प्रायश्चित करते थे, और उसको फिर वहां बलि किया जाता था। और उसके रक्त को लेकर के महायाजक थोड़े समय के लिए महापवित्र स्थान में जाता था, जहां पर वाचा का संदूक रखा होता था, और संदूक के ऊपर एक ढकना होता था जिसको मर्सी सीट कहा गया या प्रायश्चित का ढकना कहा गया। और उस ढकने के ऊपर जो सोने का बना होता था, महायाजक उस लहू को छिड़कता था जो उस बलि के जानवर का होता था। परमेश्वर, ये हमारा प्रायश्चित है हमारे पापों का, मेरे पापों का, मेरे परिवार के पापों का, हमारी जाति के पापों का प्रायश्चित। परमेश्वर आप हमें क्षमा करें। और जैसे उसका नाम उस जगह था प्रायश्चित का ढकना, मानो परमेश्वर ने उनके पापों को ढांक दिया और पाप उनके ढक गए। ये दूसरा अर्थ है, उसने पापों को ढांप दिया। और यहाँ लिखा है परमेश्वर
के सामने वो धन्य है जिनके पाप ढाके गए। धन्य वो मनुष्य है जिससे परमेश्वर पापी ना ठहराए। मित्रों, जो बड़ा दिन का संदेश है वो हमारे लिए इस बात का आश्वासन है कि जब हम पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को मानते हैं, तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है और हमारे पापों का हिसाब लेखा हमसे नहीं लेता। यही तो खुशखबरी है मित्रों। दिस इज गुड न्यूज एंड वी वांट टू प्रेज द लॉर्ड फॉर दिस गुड न्यूज। May God continue to speak to us so that we may continue to study His word and able to walk with Him day by day. परमेश्वर हमसे बातचीत करता है और हम इस पर ध्यान देते रहेंगे। मित्रों, आगे हम देखते हैं यहाँ पर चौथी बात जो 9 पद में पाया जाता है। चौथी बात में लिखा है, तो ये धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए, ये खतना रहितों के लिए भी है। हम ये कहते हैं कि अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। यह तो कैसा गिना गया? खतने की दशा में या बिन खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं, परंतु बिन खतने की दशा में। Now we need to read this very important verse 9 of chapter 4 of Romans. Is this blessing then only for the circumcised or also for the uncircumcised? We say that faith was counted to Abraham as righteousness. How then was it counted to him? Was it before or after he had been circumcised? It was after, not after, but before he was circumcised. Now this is a controversy here. And friend, I tell you, we have already studied the book of Acts, and chapter 15 of book of Acts says that during the first Jerusalem council, this was the controversy, because there are Jews who insisted that any Gentile who is coming to Christ need to be circumcised. The male should be circumcised, and because of the prevailing confusion among many people in many areas, because St. Paul and Barnabas went for the missionary journey and they met people here and there, and not even those field, but in Jerusalem and in Antioch also, people started talking this, and they said, by no means will accept the Gentiles as a follower of Jesus Christ, because Jesus was a Jew. And it was going on. And then in chapter 15, when they had the Jerusalem council, they met there, and it was after the first missionary journey. St. Paul was there, Barnabas was there, and some of the disciples were there, and James was the chairman of that council. And then Peter makes it very clear. And what he said, we are not going to burden the believers of Jesus Christ or newcomers, the seekers who are following Christ now, that they need to be circumcised. And what they said, उन्होंने क्या कहा कि मूर्ति पूजा से बचे रहो, अशुद्धता से बचे रहो, गला घोटियों के मांस से बचे रहो और व्यभिचार से बचे रहो, आगे शुभ है. And that was the binding decision that still now after 2000 years the church follows. We are nowhere to force people who come from Gentile that you need to follow the rituals of the Jews. और हम भी, मैं अपने लिए कहता, हम जो अन्य जातियों में से आए हैं प्रभु के पास, प्रभु का वचन हमें कभी भी इस बात के लिए हम पर नहीं थोपता कि हम उन तमाम विधियों को माने जो यहूदी लोग मानते हैं, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने तब धर्मी ठहराया जब उसका खतना नहीं हुआ था. खतने की विधि तो बाद में दी. परमेश्वर के पुराने वाचा का जो उसने बांधी अब्राहम के साथ, खतना तो चिन्ह था. The circumcision that was brought by God to Abraham, and he was circumcised. It was the sign of the covenant God made with him. And he said, I will bless your descendant, and through your descendant the entire world will be blessed. तो यहाँ पर जो मुख्य बात है मित्रों ये है कि परमेश्वर अपने लोगों को शारीरिक रूप से खतना के द्वारा नहीं, लेकिन विश्वास से
जो वो यीशु मसीह पर करते हैं धर्मी ठहराता। और ये जो बड़ा दिन है परमेश्वर के भक्तों विश्वासियों, हमें इस बात के लिए उत्प्रेरित करती कि हम इसको लोगों के साथ बांटें, क्योंकि विश्वास से जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो धर्मी ठहराए जाते हैं। और इसीलिए गलीलियों के सामने स्वर्गदूत ने कहा, तुम डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो संसार के सब लोगों के लिए हुआ, कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धार करता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह उन सब के लिए है जो पापों का प्रायश्चित करते हैं, पापों से पश्चाताप करते हैं, उन सब के लिए सुसमाचार है। और इसलिए यूहन्ना के 3 और 16 पद में साफ साफ हम पढ़ते हैं, और इसको हम याद कर रखा है। और वो क्या पद है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, लेकिन अनंत जीवन पाए। मित्रों, संत पौलुस रोमियो के 3 अध्याय के 23 पद में कहता है कि सब ने पाप किया, और अगर सब ने पाप किया है तो सबको उद्धार की आवश्यकता। हम ये ना कहें कि जब परमेश्वर इस संसार में आते हैं तो धर्मियों को बचाने आते हैं। जी नहीं, कोई धर्मी नहीं। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि एक भी धर्मी नहीं परमेश्वर के सामने, किसी ने कोई धर्म का काम नहीं करा, क्योंकि हमारे सारे धर्म के कार्य ईश्वर के सामने मैले चित्रों के समान। इसलिए अगर हम उसके पास आकर स्वीकार किए जाते हैं उसके द्वारा, तो ये हमारा विश्वास है। और ठीक इसी विश्वास के कारण परमेश्वर ने हमारे आदि पिता अब्राहम को धर्मी ठहराया, और आज जब उसकी लिख पर चलते हैं, विश्वास के लिख पर, तो हम धर्मी ठहराए जाते हैं। और मित्रों, यही है बड़े दिन का शुभ संदेश। परमेश्वर दुनिया के लोगों को बुला रहा है कि आज देखो तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। तो इस बात को हमें ध्यान देने और इस पर गौर करने की आवश्यकता। 5वीं बात यहाँ पर है, और हम पाते हैं 13 पद में, क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा, न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। विश्वास की प्रतिज्ञा, विश्वास की धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को आदर दिया, और वहां लिखा है कि अब्राहम के लिए उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आगे चलकर अगर हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने उस पुत्र को, जो प्रतिज्ञा क्या पुत्र है तेरा, इसहाक। उस समय अब्राहम की उम्र करीब 115 से 120 साल की होगी। उसको लेके तू मोरिया पहाड़ पर जा, उसको बलिदान करके चढ़ा दे। और हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक के 11 अध्याय में तो लिखा है कि अब्राहम ने ऐसा करा, क्योंकि वो जानता था विश्वास से कि अगर मैं अपने बच्चों को बलिदान करके चढ़ा दूं, पर चूंकि परमेश्वर ने कहा कि इसी से तेरा वंश चलेगा, वो उस मरे हुए बच्चे को जीवित कर देगा। और इब्रानियों के 11 अध्याय में यह साफ साफ लिखा है कि वो इस विश्वास के अंदर बिल्कुल परिपक्व था, और वो चला, मोरिया पहाड़ गया, और तब परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार उसने उसको एक मेढ़ा दिखाया, जिसका उसने बलिदान वहां पर करा। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा में विश्वास योग्य। और यहाँ पर वो कहता है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस ना होगा, अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई, जी नहीं, परंतु व्यवस्था के द्वारा नहीं, पर विश्वास के द्वारा दी गई। और हमें इस क्रिसमस के दिनों में, इन तैयारी के दिनों में इस बात को समझने की आवश्यकता है। मित्रों, we need to really understand that God, according to his foreknowledge, what did he say to Abraham? हम पढ़ते इसको 13 पद में, for the promise to Abraham and his offspring that he would be heir of the world did not come through the law but through the righteousness of faith. उसके विश्वास की धार्मिकता के कारण उसको मिला, और परमेश्वर ने उसको दिया। 6वीं बात, 14 पद, क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं। अब यहाँ पर इस बात को हम समझे मित्रों, क्या कहते हैं पौलुस? वो कहते हैं कि जो व्यवस्था वाले वारिस, अब कौन सी व्यवस्था? यह है मसीह की व्यवस्था, नई व्यवस्था।
प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती उसके 5 अध्याय के 17 पद में कहा कि ये न समझो कि मैं व्यवस्था को लोप करने आया हूं। मैंने मूसा की व्यवस्था को लोप नहीं करा, मैंने उसको पूरा करा। अब मैं तुम्हें एक नई व्यवस्था देता हूं। और वो व्यवस्था क्या है? कि परमेश्वर से अपने सारे तन मन धन से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से प्रेम कर अपने समान। ये क्रॉस का चिन्ह है मित्रों। दिस इज द साइन ऑफ द क्रॉस। आवर लव टुवर्ड्स गॉड, अनकंडीशनल लव, एंड आवर लव towards our neighbors unconditional. And when you do that, we fulfill the law of Christ. और यीशु मसीह इसलिए तो आए ताकि वो नियम हमें बताएं, और बड़ा दिन यीशु मसीह के आगमन की तैयारी है। उसके आगमन के कारण उसको स्वागत करना हमारे हृदय के अंदर, ताकि हम उस नए नियम के मानने वाले हो जाए। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जब वो यूकरिस्ट को स्थापित कर रहे थे, पवित्र प्रभु भोज को स्थापित कर रहे थे, उसने कहा, मेरा लहू नई वाचा में है जो तुम्हारे लिए बहा जाता है। ये लहू नई वाचा में है जो तुम्हारे लिए बहा जाता है। इसको लो और धन्यवाद करते से साथ इसको ग्रहण करो, पियो इसको, ताकि तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे आत्मिक शरीर में, तुम्हारे आत्मिक धमनियों में मेरा यह नया रक्त बहना शुरू हो जाए। तुम मेरी व्यवस्था को जानने लग जाओ और अपने आप को परमेश्वर के सच्चे फर्जंद जानने लग जाओ, मानने लग जाओ। और आखिरी बात, द सेवेंथ वन, 16 पद, इसी कारण व्यवस्था विश्वास पर आधारित है और कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उनके लिए जो व्यवस्था वाला है, पर उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास करने वाले हैं। वही हम सब का पिता है। इसलिए यहाँ सबसे बड़ी बात जो करी गई मित्रों, वह है विश्वास। आपका विश्वास यीशु मसीह पर। और उस समय जब यीशु मसीह संसार में पैदा हुए, उस रात के समय, और गलीली आए और उन्होंने स्वर्गदूत आए, उन्होंने गलीलियों को बोला। स्वर्गदूतों ने कहा कि आज देखो, मैं पहले तो उन्होंने कहा कि डरो मत, क्योंकि भयभीत हो गए थे गलीली। और तब स्वर्गदूतों ने कहा कि डरो मत, क्योंकि देखो आज मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। और वो क्या शुभ संदेश है कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो मसीह प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह का नाम इमानुएल रखा गया, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। मित्रों, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाते हैं, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। डियर फ्रेंड्स, वी आर ग्रेटफुल टू द लॉर्ड फॉर गिविंग अस दिस गुड न्यूज that by faith and not by our any work that we are counted righteous before God. हम उसके सामने धर्मी ठहरते हैं विश्वास के द्वारा, और ये परमेश्वर की दया का परिणाम है। हम धन्यवाद देते हैं आज इस बाइबल अध्ययन के लिए। मित्रों, हमने कई बातों पर गौर करा, कई बातों को देखा, और मेरी आशा है कि हमने इससे आशीष प्राप्त करी है। आइए हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। We thank you, Lord, for speaking to us this evening. As we have studied this word, we pray, O God, thou continue to speak to us so that we may grow in you, Lord, and through our lives, your name is exalted and is glorified. We thank you, Lord, that you came into this world so that we may have faith in you, Lord, which is our righteousness, or faith in Jesus Christ. हम धन्यवाद देते कि आप संसार में आ गए परमेश्वर, जो सारे जहान के बनाने वाले हैं, ताकि हम आप पर विश्वास करें, उसके द्वारा हम धर्मी बनाए जाएं आपके द्वारा। ऐसा अनुग्रह दे प्रभु कि हम इस वचन को गहराई से समझें और अपने जीवन से आपकी महिमा कर सकें। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, I don't have any announcement today because already this announcement have been made, and we hope that we'll follow this up. And as we have already said that on 20th we are not meeting in person in the church for worship, but we'll meet on 25th of December, that is on Christmas Day. We'll have worship in person in the church. There will be 3 services, 8:30 a.m., 10:30 a.m. and 12:30 afternoon. And these all 3 services will be combined service, and we'll have the Holy Communion also. So we remember that. And then also we're going to have this carol singing by Zoom, and it is already known to you, and you read the WhatsApp and the news that we are floating.
and you abide by that and inform others also that they also may know. Let's conclude the Bible study and pray and then receive the benediction. प्रभु आपका धन्यवाद करता है आज के वचन के लिए जो आपने दिया. हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते प्रभु, हमारी अगुवाई करें, हमें संभालें, ताकि इस निराशा के बादल नीचे हम रहते प्रभु जी. हमारे चारों तरफ निराशा के बादल हैं और बहुत सी बातें प्रभु जिससे हम निराश हो सकते हैं, लेकिन प्रभु आप चाहते कि हम इस निराशा के बादलों से ऊपर देखें, इस निराशा के क्षितिज से प्रभु आगे देखें कि वहाँ पर धार्मिकता का सूर्य है जो चमक रहा है, जो यीशु मसीह है. ये प्रभु हमारी सहायता, हमारी मदद करें. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन. अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की इफ़ाक़त शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन. Jesus is Lord. May God bless you and have a great preparation for Christmas. Do it is in silence or in very simple way, but in this pandemic time, God is with us in spite of all the diverse situation. His presence is with us, and His presence is the cause of all joy and happiness in our life. That is our strength. May God bless you. Thank you. Take care. Good night.